کر لیتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے جی. خواتین حضرات، آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بہت سارے ٹاپکس جو ہیں اس وقت ٹیبل کے اوپر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ڈسکس کریں، لیکن جو سب میں کچھ اہم چیزیں ہیں وہ ہے یو ایس الیکشن، جو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یو ایس الیکشن ہوں گے. اس کے بعد پالیسی میں کوئی شفٹ آئے گا. اگر کو بائیڈن صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا پالیسی ہوگی، کس پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، ایشیا کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی. کشمیر پہ بائیڈن صاحب کا جو موقف ہے کافی کلیئر ہے. انڈیا کے جو بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس موقف سے خوش بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ بات کریں گے کہ جی کیا ہوگا. اس کے بعد افغانستان میں کیا پالیسی ہوگی، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جی اس وقت جو طالبان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو جو پوسٹ یو ایس الیکشن سینیریو ہے بنیادی طور پہ اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن پوسٹ الیکشن سینیریو پہ گفتگو کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں جو پی ڈی ایم کی ریلی ہوئی، اور میں کم از کم اس ریلی کے جو فوٹیجز میں نے دیکھی وہ دیکھ کے سرپرائز ہوا کہ بہت زیادہ لوگ تھے. ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ تھے. شاید کوئٹہ کی آبادی بڑھ گئی ہے یا جو ہے پی ڈی ایم کی جو لائکنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے. تو میں میرے ساتھ بڑا پینل میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب ہمارے دوست صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ مریم سبی، پولیٹیکل اینالسٹ صحافی. فیض رحمان صاحب نے ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا. تو فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ صحافی ہیں، ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. مونا کاظم شاہ جو ہے نیڈز نو انٹروڈکشن، اور یہ پولیٹیکل صحافی ہیں. تو ان سب سے گفتگو کریں گے. مصباح بھائی میں سب طرف آپ کی طرف سے میں پہلے آ جاتا ہوں. سر یہ اب تک کوئٹہ کے اور بلوچستان کے جو آئی جی صاحب ہیں خیر خیریت سے ہیں اب تک اطلاعات کے مطابق، اور امید ہے کہ اگلے آنے والے جو دن ہیں اس میں بھی ساتھ خیریت سے رہیں وہ آئی جی صاحب. لیکن مصباح میں جب یہ ریلی دیکھ رہا تھا اور یہ جو ایک وقت جو ایک مومنٹم شروع ہو گیا، اور اس مومنٹم کو میرے حساب سے کہ کہتے ہیں نا کہ اکثر جو ہے آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار کے اگلے کو فائدہ دے رہے. تو اس طرح کا سینیریو مجھے نظر آیا کہ پوسٹ کراچی انسیڈنٹ کے بعد کہ اب بہت سارے جو لوگ جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، کھلا سپورٹ کرتے تھے، کراچی انسیڈنٹ کے بعد معاملات کچھ خراب ہوئے ہیں. اور کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں تو نہیں تھا جب پی این اے کی تحریک چلی، لیکن پی این اے کی تحریک کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے اور آپ سنا ہے، مجھے اس کی کچھ مماثلت کی نظر آ رہی ہے. اگری کریں گے آپ؟ بہت شکریہ فراز. دیکھیے فراز کہ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جو وہ کراچی کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ان لوگوں کو ایک بوسٹ تو ملا ہے پی ڈی ایم کو اس کے اندر. جہاں تک پی این اے کی تحریک ہے، میں اس سے کمپیئر اس لیے نہیں کروں گا کہ پی این اے کی تحریک جو تھی وہ ایک تو یہ تھا کہ اس میں جو کنٹرول تھا زیادہ تر وہ آرگنائزڈ اداروں کا تھا، کہ ان کے پیچھے آرگنائزڈ ادارے تھے. لیکن ہاں جب وہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو تھا ایک دیکھیے بھٹو صاحب کے پاس بڑی اچھی چانس تھی کہ وہ کچھ کر گزرتے. اس وقت جو تھا مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوئی تھیں اور عوام نے ان کو ایک طرح سے لا کر بٹھایا تھا پاور کے اندر، اور ملٹری بھی جو تھی وہ بھی بیک فٹ پر آ گئی تھی. لیکن انہوں نے جس طرح سے حکومت کی، آلدو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا ان کا جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، لیکن پھر بھی جو کچھ جس طرح سے وہ حکومت کر رہے تھے اس کی وجہ سے لوگ بڑے تنگ تھے. تو آف کورس جب الیکشن میں اس طرح کی ریگنگز ہوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تو لوگ جو تھے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے. تو اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس نے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سلولی ایک طرح سے زور پکڑا تھا کہ جتنا بھی گورنمنٹ جو تھی وہ غلطیاں کرتی تھی، کہ جیسے ایف ایس ایف جو تھی بھٹو صاحب کی جو فورس تھی، فیڈرل سیکیورٹی فورس جسے کہتے ہیں، اس نے جب جا کے کئی جگہ کے اوپر اپنے ایکسیسز شو کیے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کے اندر اور زیادہ وہ جوش آتا رہا. اور پھر اس کے بعد آف کورس جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر کچھ دوسرے فیکٹرز بھی انوالو تھے جو کہ زیادہ تر اس طرح کے جلسوں کو کامیاب بنا دیتے ہیں. دیکھیں مرزا بھائی، اس کے اندر امپائر شاید کہیں اور تھا. امپائر جو تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے ساتھ تھا، یہاں پر امپائر حکومت کے ساتھ. دیکھیے امپائر جو ہے نا وہ بڑا اسمارٹ ہے. وہ
अगर साथ ना भी हो तो वो इस कॉन्सेप्ट को कायम रखना चाहता है कि हम हर तहरीक के पीछे हैं। तो ये है कि इसमें आप सही कह रहे हैं कि अभी तक तो साथ है, लेकिन देखिए ये तो तारीखदान बताएगा कि आजकल हो क्या रहा है इस वक्त, कि हमें अभी जो दिख रहा है कभी कभी ऐसे ही होता है कि वो दिखता नहीं है जो कि कारपेट के नीचे सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक तरह से जो अंपायर का रोल है वो किसी वक्त चेंज भी हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि एक परसेप्शन डेवलप कर दिया जाए। अब जैसे मिसाल लीजिए जो वकला की तहरीक थी जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ, ठीक है जनरल मुशर्रफ साहब तो मिलिट्री के थे, लेकिन आज जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, जब आप उनसे पर्सनल बेसिस पे बात करें तो वो यही बताते हैं कि उसमें पीछे से अगर एम्पायर मौजूद नहीं था उस तहरीक के, लेकिन एटलीस्ट उस तहरीक को एम्पायर ने ये परसेप्शन ज़रूर डेवलप कर दिया है लोगों में कि भाई वो तो हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था इसलिए कामयाब हुई। ठीक है जी, लेग एम्पायर वहां पर मौजूद था कहीं ना कहीं। हाँ, मगर ये एक तरह का एटलीस्ट परसेप्शन जरूर क्रिएट किया जाता है ताकि पब्लिक में ये एक, अब ये मेरी एनालिसिस है, ताकि पब्लिक में एक तरह का ये फीलिंग रहे कि विदाउट अंपायर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है जी, मैं फैज साहब की तरफ आता हूँ। फैज साहब, आपने मिसबा साहब की बात सुनी सर, ये आपकी जो उम्मीदें थी पीडीएम की, अच्छा मेरी जो उम्मीदें थी ना पीडीएम जब स्टार्ट हुई, मैं कहा यार ये कुछ नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है, गुब्बारे में से हवा भी निकल जाएगी कुछ जलसों के बाद, ज्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बरक्स जो है मोमेंटम पिक हो रही है, यानी कि मामला जो है हुकूमत प्रेशर में नजर आ रही है। देखिए सबसे पहले तो फारूक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, great to be here with this great panel, और माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम एक तवील अरसे से जारी है, मुझे बहुत खुशी है। और फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिसबा साहब से एटलीस्ट इन पर्सन, वर्चुअली इन पर्सन मेरी बात हो रही है, तो अगेन इट्स एन ऑनर टू बी हियर। अच्छा देखिए इन्होंने बहुत अच्छा मरबूत तबसरा किया है, और जो अंपायर्स वगैरह की जो बातें, इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे नज़दीक थोड़ी सिनिकल भी हैं। मेरा अपना जो तजुर्बा और मुशाहिदा है वो ये कि देखिए इवन जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं और किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जाते हैं, और हमारे दोस्त मिसबा साहब उस एरिया से हैं, तो वो आपसे कहता है हमें कुछ करके दिखाएं। पहले ये जो हम आपने गुब्बारों की जिक्र किया, तो कहते हैं गुब्बारे में कुछ अपने दम तो लगाएं, कुछ थोड़ी बहुत हवा भरें, फिर उसके बाद हम शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें बाद में जाके किस तरह से रोल आउट होती हैं, किस तरह शेप अप होती हैं, उनका दारोमदार बहुत से फैक्टर्स पर होता है, लेकिन चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिकली शुरू होती हैं और लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि वो किस करवट बैठती हैं, किस तरह से आगे जाती हैं। पीडीएम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का रोल है या नहीं है, या फिर जो आपका एक जो टर्म आपने यूज़ किया यूनिवर्सली अंडरस्टूड, एक मेरा ख्याल है कि एक इस्तिलाह बन चुकी है अंपायर की, तो इसमें क्या शुरू से मामला साथ था या कुछ अंपायर्स में ही आपस में कुछ तकसीम है, कुछ लोग इस तरफ हैं कुछ लोग इस तरफ हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि इस वक्त जो लोग अपनी बेट्स हैज कर रहे हैं वो बीच में बैठे हुए हैं, वो दोनों तरफ देख रहे हैं, और उसके बाद ही कोई आपको वाज़े नतीजा नज़र आएगा। लेकिन ये तय है कि इनको काफ़ी स्पेस दी जा रही है पीडीएम को, जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड, एक गैर मुतवक्को चीज़ है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को भरपूर पूरे इजाज़त दी गई कि वो बाकायदा खिताब करें और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि उन्होंने लिख कर वहाँ पर तकरीर की थी। उन्होंने बाकायदा मतलब उसको मैं ये नहीं कहूँगा लिख कर की, लेकिन बहरहाल अच्छी वेल थॉट आउट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनको इतनी इजाजत दी जाएगी कि इस तरह की तकरीर करें, और उसके बाद उन पर पाबंदी भी नहीं लगी और वो करते रहे। लेकिन एक चीज है कि मोहसिन दावर को अटेंड नहीं करने दी गई है रैली, तो कुछ मामला है कि भाई छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनको कंट्रोल करो, बड़े को रहने दो, कुछ हो सकता है, कुछ बीच का ये मामला भी हो सकता है। और ये जो मिसबा ने जो बात की ना कि अंपायर्स ये चाहते हैं कि जी हम और इसमें करके दिखाएं, बिल्कुल सही बात है कि हम रेलेवेंट हैं, हम ही पीछे बैठे हुए हैं। तो ये गेम अगर है, इट मे बी अ वेरी सिनिकल व्यू, लेकिन अगर ये गेम है तो बहुत ही खतरनाक गेम है, खुद उनके लिए, अंपायर्स के लिए भी, और ज़ाहिर है आपकी माशरे के लिए। ठीक है, ठीक। मरियम आपकी तरफ आता हूँ, और आपने, मैंने भी पूरा जलसे की पूरी कुछ हाइलाइट्स मैंने देखे, पूरा जलसा नहीं देखा, लेकिन मुझे जो चीज समझ में आ रही है कि मोमेंटम पिक हो चुकी है। अब ये नहीं है कि मोमेंटम नहीं है, इसमें जान नहीं है, जान है, और जान खुद हुकूमत ने
एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने भी कराची इंसिडेंट के बाद खुद डाल दी है जान। डू यू थिंक कि इतनी ज्यादा इस हद तक अब चली जाएगी कि इमरान खान साहब का जो टेन्योर है, जो उनकी मुद्दत है, वो पूरी होना खतरे में पड़ सकती है या ऑलरेडी पड़ चुकी है शायद? हाँ, खतरे में पड़ सकती हैं। अभी पता नहीं है कि वो पूरी तरह से खतरे में है या लेकिन हालात ऐसे ही जा रहे हैं। जो कराची में ब्लंडर हुआ है उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है आई थिंक PDM के मूवमेंट को मोमेंटम देने में, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस तरह वो पुलिस ऑफिसर्स खुद खड़े होके अपना लीव के लिए उन्होंने वो अपना फॉर्म दिया कि उनको कुछ टाइम चाहिए है। तो दिस वाज अ गुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो इंसिडेंट हम लोगों ने देखा जो सबके लिए बहुत काफ़ी ट्रबलिंग था। तो इस वजह से आई थिंक मूवमेंट को कुछ और लोगों को हौसला मिला है। और अभी जो फैज़ ईसा का जो जजमेंट आया है उससे भी आई थिंक कुछ फर्क पड़ा है। तो ऑल्सो ये हमारी जो एज है सोशल मीडिया की, उसमें कुछ सेंसर करना काफ़ी मुश्किल है। तो आई थिंक मीडिया ऑल्सो नोज के अगर इवन एस्टैब्लिशमेंट या जो अगर वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू लाइव ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, तो लोगों को पता चलता रहता है कि कि कौन क्या बोल रहा है, और कोई किसी की अब स्पीच रोक नहीं सकता, कोई किसी की अब तकरीर इस तरह रोक नहीं सकता कि हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उनका मोटिव क्या है। तो नवाज शरीफ also gave motivation to the civil service. उन्होंने civil service को appreciate किया कि जो उन्होंने अपना protest वो किया, तो he appreciated that. और he was also talking to the military कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम पब्लिक आपको बहुत मानती है, लेकिन जब लॉ की बात आए तब we should all take a stand. And he said the same thing to the civilian population कि आप अपनी फौज की बहुत रिस्पेक्ट करें, हम सब करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए, जिस तरह सिविल सर्विस खड़ी हुई। अच्छा मिर्जा भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये होता ये कि मुझे जो एक तो हो गया कराची का इंसिडेंट, एक हो गया इंसिडेंट हो गया, जो होना था होनी थी हो गई, लेकिन उसके बाद एक उसको टूल दिया जाता है। अच्छा, उसको टूल इस तरह से दिया था कि अगर आप मेरे हिसाब से अली जैदी को और फैसल वाडा को ये कहते हैं कि हुजूर बहुत मेहरबानी होगी कि अगर आप खामोश हो जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी, तो ये अब तक ये जो चीजें जो आई, जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ आया और जिस तरह से भौंडेपन से उसको डिफेंड किया गया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, मेरे हिसाब से तो इस तरह के जो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं या हुकूमत में साथ बैठे हुए हैं, अब जो भी दानिशमंद हजरात, जो समझदार या अक्लमंद हजरात एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, वो भी बैठे हुए सोच रहे होंगे कि यार ये हमें फायदा दे रहे हैं या ये हमारे पर एक बोझ बने हुए। तो क्या वजह है कि और इमरान खान साहब को अब तक ये चीज रियलाइज नहीं होके दे रही है कि इस तरह के जो लोग हैं और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये कोई हमें फायदा नहीं दे रहे हैं, उल्टा में नुकसान ही दे रहे हैं। देखिए फराज, एक छोटा सा कमेंट आपके जवाब से पहले मैं देना चाहूँगा कि मरियम बीबी के ने जो फरमाया उसके एक्सटेंशन में एक्चुअली कि जो ये बात वो सही कह रही हैं कि जो एक तरह का जो इम्प्रेशन जो दिया जाता है इन जलसों से और इस तरह की चीज़ों से, वो इम्प्रेशन जो है काफ़ी हद तक जो है पब्लिक जो है उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। देखिए फराज, एक दो चीज़ें होती हैं जिससे गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होती है। पहली चीज़ ये होती है कि वो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी करे। अब हमारे पास परफॉर्मेंस क्या है कि हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे सरप्लस में पहुंचा दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, इस पे बात हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फिर क्या करें कि अगर आपके पास परफॉर्मेंस भी ना हो और फिर जो ऑपोजिशन है वो सर चढ़ रही हो तो क्या वो है।
तो जो मुझे लगता है, जो ओवरऑल जो आपके सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ, का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा कि जो ये फैसल वावडा और इस तरह के लोग हैं, ये लोग एक मिशन के से एक सोची समझी स्कीम के तहत ये काम कर रहे हैं। कि आप देखिए कि इन लोगों की एक तरह की जो कोशिश दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है, इन लोगों की, जब मैं कहता हूँ मेरा मतलब है हुकूमत की, कि किसी तरह से ऑपोजिशन और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक दूसरे से झगड़ती रहे। तो जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का टाइम आया, उस वक्त ये बिल्कुल सोचा समझा एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि नवाज शरीफ आके बड़ा सख्त बयान देंगे उसके खिलाफ और ये होगा वो होगा और उससे फर्दर क्रैक पड़ेंगे इन दोनों में। लेकिन क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उन्होंने फौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसे तस्लीम कर लिया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फैसल वावडा साहब जूता लेकर पहुंच गए काशिफ अब्बासी के शो में। तो मतलब देखिए कि एक तरह से वो उन्होंने, एक तरह से ये होता है ना कि जो बच्चे जब एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं, ये कुछ उस तरह की चीज है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ लोग हैं, ये लोग सब सोची समझी उसके तहत कर रहे हैं। और इमरान खान साहब जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह। मिसबा भाई, एक और भी चक्कर है। मैं जो कराची के और गुजरावाला के जलसे के बाद जो कुछ लोग जो कमेंट्स होते हैं, यानी कि जो रुका होते हैं, उनके अक्सर जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, उनकी ऑफलाइन माइक लेकर उनसे बातें कर, कुछ लोगों ने जो एक कंसिस्टेंट ट्रेंड था वो ये था कि हमें पता है कि ये लोग अपने मफाद की खातिर आए। आसिफ जरदारी जो है वो अपने मफाद की खातिर हैं, नवाज शरीफ साहब का अपना मफाद है। मैं कहा जी आप यहाँ पर क्यों आए? मतलब हम यहाँ पर इसलिए आए कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो कुछ वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई सर पर है, बेरोजगारी सर पर आ गई है, बुरी हालत है, लिहाजा हम जाए तो फिर कहाँ जाए, तो यहाँ आ गए। तो ये जो एक सिलसिला जो आपने कहा कि परफॉर्मेंस और महंगाई और जो आपने वादे किए, तो लोगों की वाकई में कमर टूट गई है। अब आप मुझे बताएं कि वो जाए तो कहाँ जाए, उनको भी तो अपनी दुआई देनी है ना कहीं। तो मैंने कहा जी ये एक अच्छा फोरम है, गोया कि ये लोग भी अपने मफाद की खातिर आए, लेकिन जो है हम कम से कम यहाँ शिरकत करके इससे तो बेहतर ही होंगे, या इससे बेहतर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो वर्ष तो हम देख चुके हैं। तो मामला खराब है, माशी मामला बहुत खराब है। हाँ नहीं देखिए फराज, ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि भाई हर एक का अपना मफाद है। देखिए अगर तो ऑपोजिशन अभी भी कुछ ना बोले इतनी बुरी हालत में, तो ऑपोजिशन को भी पब्लिक जो है खुद से बाहर आ जाएगी। और जब पब्लिक खुद से बाहर आ जाएगी वो एक लीडर लेस मूवमेंट होगी जो कि एनार्की की तरफ ले जाती है, फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। तो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन को कहीं से इंटर होना था। अब ये कहना कि वो लोग अपने मुकदमों की वजह से आ रहे हैं, ये दैट डज नॉट, अब ये चीज बाय करना इतना आसान नहीं है कि आप जेलों में तो उन्हें वैसे ही डाल रहे हैं, मुकदमे वैसे ही चल रहे हैं, उनके ऊपर सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर है उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और खान साहब जो है नवाज शरीफ वापस आएंगे? अब एक पार्डन क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इवेंचुअली वापस आएंगे, उनका जब ये सब ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा वो आ जाएंगे वापस। और अभी क्योंकि वो यहाँ से बाहर रह नहीं सकते, पहले भी कहा जाता था कि वो नहीं आएंगे और भाग गए और ये छुपे छुपे रहेंगे, मुशर्रफ साहब इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन वो आए क्योंकि उन लोगों का, उनका जो है पूरी सियासत का जो महवर है वो पाकिस्तान के अंदर है। आप देखिए उनकी बेटी तो यहीं पर है कि भाई अगर वैसे ही उन्हें भागना होता तो अपनी बेटी को भी किसी तरह से डील वील करके बुला लेते और मतलब बात खत्म हो चुकी होती। और कहा जाता है कि शुरू में शायद यही उनको आइडिया दिया गया था और वो काइंड ऑफ शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें एक तरह से कन्विंस भी कर लिया था कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग बेटी को भी बुला लें। लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि किसी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है और अपोजिशन है वो लोग एक पेज के ऊपर आए, वो लोग आपस में बातें शुरू करें। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह सबोटाज किया चीजों को। अच्छा जी ठीक है, एक जो मैं जरा इस पर आ जाऊं और मैं आपसे फैज आपसे सवाल रखता हूं, क्योंकि एक जो सवालात जो मुझे कुछ अभी फोन पे मेरे कुछ दोस्तों ने भेजा, उन्होंने कहा जी सीधी सी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो था हमेशा से मोदी का यार और अब वो मोदी का बंदा है और ये मोदी के इमाम पे पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की और पाकिस्तान में अनार्की फैलाने की एक कोशिश हो रही है जिसका जो है नवाज शरीफ हिस्सा है। सर ये एक नजरिया है, आप इससे किस हद तक एग्री करेंगे?
नहीं देखिए, ये तो एक ज़ाहिर एक बकवास है, बिल्कुल इसको आप आउटराइट इसको डिस्क्रेडिट करता हूँ और रिजेक्ट करता हूँ। देखिए बात जैसे, और कोई भी किसी का यार नहीं है। देखिए हम सब के मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं, हम सब एट द एंड ऑफ द डे उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा और मिसबा साहब, हम लोग एक अरसे से बाहर हैं, लेकिन आप देखिए ज़रा मिसबा साहब की ज़रा बातें सुने, ऐसा लग रहा है कि अभी वो भाटी गेट में बैठे हुए हैं और हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं। मतलब वी आर सो डीपली इन्वॉल्व। तो पाकिस्तान जो है वो किसी एक शख्स का, किसी एक आइडियोलॉजी का नहीं है, हम सब का है। नवाज शरीफ से 10,000 इख्तलाफात हैं और मुझे हैं, देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लव लॉस्ट। लेकिन मसला क्या है कि आप अगर उनको ये कहें कि भाई वो चूँकि एक उनकी एक मखसूस पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी है, वो समझते हैं कि इंडिया से अगर हालात और तिजारत अगर अच्छी हो तो पाकिस्तान के एक आम फ़र्द को फ़ायदा होगा, तो आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पर मैं उनको ये कह के डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता कि वो किसी के यार हो गए। तो ये एक नामुनासिब बहस है और बकवास है, इसको मैं बहुत ही हार्शली इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब के क्या स्टेक्स हैं, क्या नहीं हैं, एक उनको ज़रूर एक जो क्रेडिट जाता है और एक बात उनकी ज़रूर उसकी मैं सताइश करना चाहता हूँ, वो ये कि उन्होंने एक वाज़े तौर पर एक पंजाब से ताल्लुक़ रखते हुए, सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखते हुए एक बात बबांगे दहल कही है और उस नैरेटिव को अपनाया है। और उस नैरेटिव को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की बुनियादों के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। उस पर अगेन बहस हो सकती है, लेकिन जो बात है वो मैं और आप जानते हैं कि अगर जैसे इन्होंने मिसबा ने कहा कि अगर अंपायर्स मुसलसल ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हर चीज़ में उनकी टांग अड़ी हुई है, तो भाई मुझे ये कहने का हक है, नवाज शरीफ को ये कहने का हक है कि आप किसी वक्त अपनी टांग गंवा चुके होंगे। अगर इस तरह से आप इसमें अपनी गर्दन और फिर किसी वक्त आप गर्दन अगर ले आए बीच में तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ज़रा होशियार रहिए और किसी बात को रद्द करने से पहले ये देखें कि उसमें सब्सटेंस कितना है। अगर सब्सटेंस है नहीं है तो उसको एक लॉजिकल और दलील की बुनियाद पर आप उसको रद्द करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे तो मैं मुझे आपकी तरफ आता हूँ और आप ये बयान कीजिए। मुझे एक तरह से एक अच्छा गेस्चर लगा अपोजिशन ने जो कोयटा में जलसा किया, क्योंकि एक तासुर बाहर ये रहा है कि बलूचिस्तान में तनाज़ी है, वो तो अब अलग होने जा रहा है, हालत बुरी है। लेकिन जब अपोजिशन ने कोयटा में जलसा किया तो एक इंक्लूसिवनेस का एक तासुर बाहर गया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोयटा में जलसे हो रहे हैं। हमारी अपोजिशन कोयटा को एक अहम शहर समझती है, बलूचिस्तान को एक अहम सूबा समझती है, वो हमारा है। वहां से जो है उन्होंने वहां पर अपनी रैली की और काफी बड़ी रैली की। तो मेरे हिसाब से तो ये एक पॉजिटिव गेस्चर गया। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो तो नवाज शरीफ खुद ही के वहां पे काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, इसका तो मेरे हिसाब से मैं भी एग्री करता हूँ, कोई दम नहीं है। लेकिन बहरहाल ये नैरेटिव क्रिएट हो रहा है और इस तरह की बात तो खैर हुकूमत के लोग आगे कर भी रहे कि नया अल्ताफ हुसैन बनने जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें। मुझे आपसे सवाल ये कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इतना ज्यादा मोमेंटम कर जाएगा? मैं नहीं कर रहा था। ये पीडीएफ का जो अब जो रैली है, ये एक जो मूवमेंट एक बहुत ही ज्यादा मोमेंटम इसमें जान आ चुकी है। आपको लगता है कि ये टेन्योर इमरान खान साहब का पूरा होगा? देखिए, लगता तो यही है कि पूरा तो हो जाएगा और ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो पैरेलल हमारे साथ चल रहा है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो ये कि क्वेटा के इश्यूज या बलूचिस्तान के इश्यूज कोई नए इश्यूज नहीं है। ये इश्यूज जब ये ऑपोजिशन में नहीं थे सारे लोग, तब भी यही इश्यूज थे। और ये ऑपोजिशन में बैठ के देखिए, कहना ये आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इंक्लूसिवनेस का एक रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप लोग देखें तो जब इनके दौरे हुकूमत थे और जब इनके पास पावर थी तो वहां पर साउथ पंजाब में बाकायदा उन ग्रुप्स को पाला गया नवाज शरीफ के अंडर, जो क्वेटा में लोगों के साथ शियों के साथ जिन्होंने मैसेकर किए और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन के केसों को अभी उठा रहे हैं। तो these issues were there, even when they were there. So it's kind of confusing. और एक ये भी कुछ एहसास होता है कि हमारी कौम या तो बहुत resilient है या बहुत gullible है. There's something missing somewhere. Because all of a sudden जब opposition में वही लोग आते हैं तो फिर वो एकदम से सारी लोगों के लिए डेमोक्रेसी की साइन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, and vice versa, और opposition में बैठ के ये सारी बातें करना मेरे ख्याल से आसान भी होता है
क्योंकि आपको असल में हिकमत अमली करके कुछ नहीं दिखाना है. That's my two cents. I don't know. मरियम, ओवर टू यू. आप समझदार की गुफ्तगू सुनी, आप किस हद तक एग्री करेंगी? टेन्योर पूरा होगा? शायद पूरा होगा, शायद नहीं, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा है, क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें पुराना इमरान खान कह रहा है कि वो सारी जो सिविलियन पॉपुलेशन के लिए अच्छी चीज़ें हुई हैं, बिजली हो जाए या प्राइस वो सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू हुई हैं, और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई हैं तो तब कौम को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स ये नहीं समझते कि और ये नहीं देखते कि कौम को क्या ट्रबल्स हैं या क्या उनसे क्या उनकी हालात है. तो आई थिंक बिकॉज ये established हो चुका है कि इमरान खान is not really running the show, especially ये जो कराची का इंसिडेंट हुआ था, इमरान खान ने नहीं स्टेप अप करके ऑपोजिशन से बात की, ना कुछ स्टेटमेंट दिया या कुछ लीडरशिप शो की. तो आई थिंक आसिम बाजवा इज द वन हू हैड टू कॉल and do an inquiry and talk to the opposition and talk to the civil service. तो जब इस तरह की लीडरशिप लैकिंग होगी तो फिर स्पेस होगी फॉर अ मूवमेंट लाइक दिस, और फिर उनको काफी खतरा भी पहुंच सकता है. ठीक है. अच्छा, क्या वजह है मिसबा कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल यानी कि उससे बाज नहीं आ रहे हैं, खुल के आर्मी को खुल के एड्रेस कर रहे हैं और जो है बाजवा साहब को एड्रेस करके इनका तकीद कर रहे हैं, यानी कि इसमें कोई वो एहसास ये था कि अब ये इन्होंने पहली दफा कर दिया, अब ये नहीं करेंगे, पहुंच जाएगा. लेकिन वो फिर देखिए, नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने मतलब वो खामोश भी बहुत रहे, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, और ये आज से नहीं हमेशा से होता रहा, और वो जो थे हमेशा बैकफुट के ऊपर रहे, और वो उन्होंने मतलब एक तरह से खामोशी को अपना वो समझा. लेकिन देखिए अब उनके लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है. उन्हें ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि अब वो एक तरह का नैरेटिव ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, फौज जहां तक है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, फौज जो है उसके कारनामों पर मैं सलूट करता हूं, सब कुछ सही है, लेकिन जनरल ए, जनरल बी, जनरल सी, जनरल डी आर द वन हु आर ट्रबल. तो वो एक तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं जिसमें भाई देखिए, हर जनरल तो नहीं करता ना इस तरह की चीजें, सारे जनरल्स ने तो ऐसी चीजें नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग प्रेशर डाले रहते हैं हुकूमत के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो वो एक तरह से काइंड ऑफ डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को. तो उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आपने पानी में छलांग लगाई, अब आप मिडिल में जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि पानी बहुत डीप है, करंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चॉइस आपके पास नहीं है, आपको अब वो स्विम करके दूसरी तरफ पहुंचना है. अब उसमें या तो आप डूब जाएंगे या तो आप पार लग जाएंगे. तो अब ये देखना है कि वो पार लगते हैं या डूबते हैं. वो अपनी तरफ से अब वो और ज्यादा तेजी से स्विम कर रहे हैं. आपको डूबते नजर आ रहे हैं या स्विम करके पहुंच जाएंगे, पार लग जाएंगे? भाई देखिए, एक दफा परसेप्शन जो होता है ना वो रियलिटी होती है. एक दफा आपने परसेप्शन क्रिएट कर दिया, एक दफा आपने लोगों को आवाज दे दी, आप जबान दे दी, उसको वापस खींचना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए ये जो है वो शायद खुद तो उनको बड़ा लॉस हो इसके अंदर, लेकिन क्या है कि उनके लिए लूज करने के लिए बहुत कम रह गया है, सिवाय इसके कि शायद उनकी बेटी की सियासत पे इम्पैक्ट पड़े, लेकिन वो शायद ना पड़े, वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा उनकी बेटी. हमारे इस शो से पहले मैं एक और जो शो था इसी हमारे नया दौर के प्लेटफॉर्म पे, मुर्तजा सुरंगी और रजा रूमी साहब का शो, वो मैं देख रहा था. तो रजा रूमी ने एक बात की, उन्होंने कहा जी ये जो मामला था जो बांग्लादेश, खैर उनका मकसद ये था कि वहां पर भी तो एक तहरीक थी और मुजीबुर रहमान साहब की एक तहरीक थी, और उस तहरीक को भी सीरियस नहीं लिया गया था, उसके साथ मामला हुए. हम ये नहीं, उनका मकसद ये था कि यहाँ पर कोई मामला अलग हो जाएंगे या मुल्क अलग होने के दर पे, लेकिन कुछ इसी तरह की ही तहरीक थी और उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा था. भुट्टो साहब
اور जो पार्टी थी और इन लोगों ने मिस हैंडलिंग हुई, तो यहाँ पर भी वो सारी की सारी मिस हैंडलिंग होती हुई नजर आ रही है। नहीं देखिए फराज, मिस हैंडलिंग तो हो रही है, लेकिन अब यही है ना कि किस हद तक आप मिस हैंडलिंग करते हैं। अच्छा, जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो सही बात है कि अब जो किताबें आ रही हैं, जो लोगों के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जो कि पर्सनली मुजीबुर रहमान साहब के साथ थे, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से मामला जो हैं वो ठंडे हो जाएं। बल्कि ये तो सिद्दीक सालिक साहब ने अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में बड़ी क्लियरली लिखा है कि जब वहाँ पे ढाका में जलसा हो रहा था तो मुजीबुर रहमान साहब ने कुछ अपने लोगों को भेजा एक रात पहले जनरल याकूब साहब के पास, जो कि उस वक्त वहाँ की कमांड कर रहे थे, ईस्ट कमांड के हेड थे। उनसे ये कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं आज़ादी को डिक्लेयर करूं कल के जलसे में। तो साहबजादा याकूब ने उनसे ये कहा कि नहीं, आप कीजिए, आप तकरीर भी कीजिए और आज़ादी की डिक्लेरेशन भी नहीं कीजिए, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। तो उन्होंने नहीं किया, जबकि इतने लोग उस जलसे में मौजूद थे तो वो नहीं थे। तो उसको जो था, जो मिस हैंडलिंग, उसकी जो बिगेस्ट मिस हैंडलिंग थी वो नोइंग कि इंडिया उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। जब मिलिट्री एक्शन किया गया वहाँ के ऊपर, उसने जो था हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर जब नियाजी साहब के जो स्टेटमेंट्स, जो कि आज भी उस पर भी हम लोग शो कर सकते हैं, कभी वो एक टॉपिक से हट जाएंगे अगर, लेकिन आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, उन सब चीजों ने एक तरह से हेटरेट फैला दी। देखिए डिप्लोमेसी जो है ना, वो डिप्लोमेट को करनी चाहिए, वो फौज का काम नहीं है। फौज का काम है, देखिए जनरल्स जो होते हैं, अब कॉर्पोरेट के आप एक यहाँ पर एक एम्प्लॉई हैं, आप देखते हैं कंपनीज टूटती हैं, वो एक सीईओ करता है। जब वो टूट कर वो सेटल हो जाती है, जब उसके स्पिन ऑफ बन जाते हैं, फिर क्या होता है कि फिर वो सीईओ बदल देते हैं मोस्टली, और फिर दूसरा आदमी उसे कंट्रोल करता है। कि देखिए हर एक का टैलेंट होता है। जनरल जो हैं वो फौज से वो टफ काम के लिए सामने आते हैं, वो रेडी रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। और जो सिविलियन होता है वो डिप्लोमेसी फिर करता है, वो लोगों से बात करता है, वो चीजों को आगे बढ़ाता है। तो देखिए यही सारा मसला है यहाँ के ऊपर, कि जो कि नवाज शरीफ साहब प्रोबेबली ट्राई टू कम्युनिकेट एंड एजुकेट द पीपल। ठीक है, मैं टॉपिक को स्विच करता हूँ मरियम, और आपसे करता हूँ कि यूएस इलेक्शन, और यूएस इलेक्शन में दो सिनेरियो हैं। ट्रम्प साहब री इलेक्ट होंगे, कंटिन्यू करेंगे, या जो बाइडेन साहब आएंगे। अच्छा, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं उनका हमें अंदाजा है, लेकिन जो बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज तो हमें पता है क्या होंगी, लेकिन अभी इस वक्त एक मामला चल रहा है हमारे खित्ते में, तालिबान नेगोशिएशन चल रही हैं, पीस नेगोशिएशन इन प्रोग्रेस। अगर को तो जो बाइडेन साहब आते हैं, और बाय द वे अब तो ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो जो नेगोशिएशन है वो कोई मुस्बित जानिब भी नहीं जा रही है, उसमें बहुत सारे तनाज़ात भी हैं, बहुत सारे खराब भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हंकी डोरी पर हर चीज साइन हो गई, मामला सही हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान का उसमें एक कलीदी किरदार है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शामिल है उनको तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पे बिठाने में, वो सारे का। और हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड भी करता है अफगानिस्तान की तरफ। तो जो बाइडेन साहब आते हैं, क्या पॉलिसीज होंगी, अफगान जो पीस टॉक्स हैं इस पे कोई इम्पैक्ट होगा, हमारा जो चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं सी पैक पे, जिसपे अमेरिका हमसे खुश नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगी? आई थिंक अगर जो बाइडेन आएंगे तो वो अफगानिस्तान से निकलने का, पूरी तरह से निकलने का रश नहीं करेंगे। तो वो हालात को देखेंगे, ही अंडरस्टैंड्स द रीजन, उनकी जो रीजन की जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, जो बाइडेन अंडरस्टैंड्स दैट मोर देन ट्रम्प। तो वो रश नहीं करेंगे। अभी ट्रम्प और माइक पेंस ने कहा है कि वो क्रिसमस तक वो सारे ट्रूप्स निकाल देंगे, और ये एक्चुअली इमरान खान ने खुद अपने ओपिनियन पीस में कहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका वहाँ से रश करके जाए बिफोर के वहाँ कोई इस तरह का पीस हो, क्योंकि अभी जैसे आपने भी कहा वहाँ काफी अब हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ बॉम्बिंग्स हो रही हैं, बच्चे अभी औरतें बच्चे मर रहे हैं बॉम्बिंग्स में, तालिबान कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अटैक्स, और फिर अफगान साइड भी अपना कंटिन्यू कर रहा है।
अमेरिका ने दोबारा उनसे कहा है कि जो हमारे एग्रीमेंट्स थे तालिबान के साथ आप लोग उनको फॉलो करें। उसमें वो कह रहे हैं कि उनका एक अग्रीमेंट ये भी था, आई थिंक इट्स नॉट रिटन इन द अग्रीमेंट, लेकिन वो अग्रीमेंट था कि आप 80% वायलेंस कम करेंगे, लेकिन वो वायलेंस कम नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह अगर पाकिस्तान के लिए भी डेंजरस है, अफगानिस्तान के लिए भी डेंजरस है अगर तालिबान और पावर में आ जाएंगे और वो अटैक्स अपना कंटिन्यू करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो दैट वायलेंस कैन आल्सो स्प्रेड इनटू पाकिस्तान अगेन, जैसे वो पहले स्प्रेड हुआ था। तो ये डेंजरस बात और है, ये हुआ है, बल्कि इनफैक्ट जो टीटीपी है, टीटीपी तो मजीद स्ट्रेंथन हो रही है। टीटीपी को कहना जी वापस रिग्रुप हो गई है वो, और काफी अफगानिस्तान पे काफी लॉन्च कर रहे हैं अटैक वो पाकिस्तान में। हाँ, तो ये एक बहुत डेंजरस बात है, और आई थिंक पाकिस्तान इज आल्सो स्कैर्ड ऑफ दिस सिनेरियो दैट अमेरिका इज जस्ट गोना लीव एंड देन ट्रम्प इतना केयर नहीं करेगा कि वहाँ जो हो रहा है होने दें, अगर उनको अपने आप को मारना है तो मारने दें, हम अमेरिका पे फोकस करेंगे। लेकिन अमेरिका की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वहाँ वो देखें कि अफगान गवर्नमेंट के साथ उनकी एक रिलेशनशिप है, उनका एक प्रॉमिस है कि वो हेल्प करेंगे, तो दे हैव टू आल्सो अबाइड बाय दोस प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा मिस्टर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, एक बड़ा अहम टॉपिक दूसरा अहम टॉपिक ये है कि अभी जितने भी जो पोल्स हैं उसके हिसाब से जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, लेकिन सर ये तो हमने पहले भी देखा था, अब से 4 साल पहले भी यही मामला था। हर पोल में जो है कहीं पर भी ट्रम्प साहब नहीं थे, बल्कि शुरू में भी था कि ट्रम्प साहब तो बस अभी आके प्राइमरी वगैरह के बाद आउट हो जाएंगे, लेकिन आ गए। फिर उसके बाद वो नॉमिनेट हो गए एज ए रिपब्लिकन उम्मीदवार। फिर उसके बाद कहता कह रहे यार ये हो तो गए, लेकिन कोई ऐसी की बात रेटिंग वेटिंग जो ये इलेक्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी अमेरिका में इलेक्ट हो ही नहीं सकता। इस पर तो जाके लोगों ने शर्तें लगाई थी, हमारे दोस्त हमें कहते कर रहे थे, लेकिन एक आप भाई आदमी मुझसे कहा था कि फराज ज्यादा से हल्का मत लो, ट्रम्प इलेक्ट हो जाएगा जो मामला चल रहे हैं, और ट्रम्प साहब इलेक्ट हो गए। अच्छा, तो वो आपका वो सिनेरियो था, वो किस बेसिस पे था? अब जो सिनेरियो था क्या वही अपनी 4 साल पुरानी टॉपिक से आप कह रहे थे कि हो जाएगा ले रहे और वो हो गए? सर वही टॉपिक जरा फिर से लगाएं और हमें बताएं कि वो इस दफा क्या होगा। देखिए फरहाद, टोपी की बात नहीं होती। एक्चुअली मेरा जो आइडिया था वो ये था कि जो उस वक्त जो ट्रम्प साहब के एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट परसेप्शन था हर तरफ कि जो लोग हैं कि ट्रम्प के जो ज़्यादातर सपोर्टर हैं वो वाइट रेस वाले लोग हैं। अच्छा, लेकिन ये था कि वो बात सही थी तो, लेकिन ये था कि जो दूसरे जो लोग थे जो कि नॉन वाइट थे, अब देखिए कि वो कुछ ऐसी स्टेट्स में भी जीते जहाँ के ऊपर बेसिकली प्रीडोमिनेंटली डेमोक्रेट्स जीतते हैं। तो एक वेव चली हुई थी जिसे हमारे डॉक्टर आदिल नजम साहब कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ नो पॉलिटिक्स वाली वेव। आप दुनिया भर में देख लीजिए इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था कि भाई किसी ऐसे शख्स को पावर में लाओ जो कि कोट एंड कोट वॉशिंगटन पॉलिटिशियन ना हो। तो मेरा जो पॉइंट था वो उसी पे था कि ये जो बातें कर रहे हैं जो लिबरल मीडिया वाले, ये लोग कुछ थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी ज्यादा बातें कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब जो हैं उनके जीतने के चांसेस बहुत हाई थे। दूसरी चीज जो मेरा पॉइंट था उस वक्त वो ये था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है यूएस की, जो कि जैसे एफबीआई थी और उसके जो हेड थे कोमे जो थे, वो उनका एक तरह का बड़ा ट्रबल थी क्लिंटन फैमिली से। तो वो जो थे उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने किया, जो कि बीच मंझधार में उन्होंने वो उनकी जो ईमेल्स की जो चीज़ें थी वो निकाल दी और एक स्टेटमेंट दे दिया और वो सब। तो ये जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी उस वक्त। अच्छा, अब जो है इस दफ़ा के इलेक्शन मैं जो समझता हूँ वो उसके कंट्रोवर्शियल होने के चांसेस बहुत हाई हैं। कि आप देखिए कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं जो कि मेल इन बैलेट से वोटिंग कर रहे हैं इस दफ़ा। तो ये होगा कि इलेक्शन नाइट को जो शख्स जीतेगा, हो सकता है वो ना जीता हो,
वो बाद में पता चले वो नहीं जीता है, और फिर ये क्वेश्चंस उठेंगे कि वहां पे रिगिंग हुई है, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन होती है। तो ये साल जो है, या इस साल बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना कि किस तरह से, और मुझे लग रहा है, यानी कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, होप ना हो, होप आई विल बी रॉन्ग, लेकिन मुझे कुछ फीलिंग ये हो रही है कि जो 2000 में हुआ था, एक इलेक्शन ड्रामा पूरा हुआ सुप्रीम कोर्ट, और ये इसमें भी सुप्रीम कोर्ट तो इन्वॉल्व ना हो इस दफा, लेकिन हो सकता है हो, और वही कुछ हो कि भाई उसी तरह से कॉन्सर्वेटिव वर्सेस लिबरल जजेस जो हैं, वो लोग जो हैं अपनी पार्टी लाइन पे फैसले देकर अपने कैंडिडेट को जिताएं, जिस तरह से जॉर्ज बुश साहब जीते थे 2000 में। तो और मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि मैं फैज साहब से ज़रूर पूछूं कि वो कैसे इस चीज को जो मेरा जो कमेंट है उसको वो किस तरह से देखते हैं। सवाल आप पूछ लें, लेकिन मैं चाहूंगा वो इसका भी बिल्कुल मैं ओवर टू यू फैज साहब। जी थैंक यू। तो मिर्जा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात की, और आई डिडंट नो कि आपने 2016 में भी प्रेडिक्शन की थी कि ट्रम्प जीत जाएंगे, और बहुत वैलिड पॉइंट्स थे आपके बैक देन जो आपने मेंशन किए। अच्छा, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, अगेन दिस इज़ नॉट माई प्रोडिक्शन, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बाइडन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जीतने की। उसकी वजह ये है कि देयर इज सो मच फटीग बिल्ट अराउंड ट्रम्प नाउ। देखिए 2016 में वो सब कुछ थे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन अब जो 4 साल का जो उन पर बोझ है एक्सप्लेन करने का, जो इनकम्बेंसी का जो बोझ है, जिसको कि उनके अब वो नाउ ही इज़ बीन टेस्टेड एज अ प्रेसिडेंट एज अ रूलर, तो उसके जवाब, तो वहाँ बहुत से उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नंबर 1। और जब नंबर 2 ये कि जब देखिए शोर बहुत ज़्यादा मच जाता है ना, जब किसी शख्स और किसी तहरीक के गिर्द, तो फिर मामला चेंज हो जाते हैं। तो ट्रम्प के पास इस वक्त इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है कि शायद अब इनका सर्वाइव करना मुश्किल है। आई टोटली एग्री विद यू कि इसका नतीजा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस रात आए, क्योंकि मैंने खुद पहली दफ़ा मेल इन बैलेट से वोट दिया है, हमारी पूरी फैमिली ने मेल इन बैलेट से वोट दिया, और वो कब जाके उसका फैसला होगा, कब वो काउंट होंगे, वी डोंट नो। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट पर जाए और वहाँ जाकर ये फैसला हो। लेकिन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन फराज, जो आपने मरियम से उनके बारे में पूछा था, अपने रीजन के बारे में, मेरा अपना ख्याल ये है कि बाइडन वुड बी लिटिल हार्शर ऑन पाकिस्तान, और उसकी एक हिस्ट्री है। अगर आप देखें ओबामा की और बाइडन की जो 8 इयर्स की जो उनकी प्रेसिडेंसी थी ओबामा की, उस वक्त उसमें कहते हैं कि बॉटम लो टच किए थे, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस जो थे वो बिल्कुल बॉटम लो पे थे, यानी कि 70 साल की हिस्ट्री में। ड्रोन स्ट्राइक्स को आप देख लीजिए। और मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं कैलिफोर्निया के, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो वो जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो इनके उसमें गए थे एक फंड रेजर में। तो जब फंड रेजर, जब फोटो ऑप का वक्त आया, तो वो जब गए बाइडन साहब का, तो उन्होंने बड़े उससे कहा, यू नो माय नेम इज सच एंड सच एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो बाइडन ने कुछ और सुना ना देखा, वो सब उन्होंने डायरेक्ट, उनका एक स्टाइल है मखसूस, जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं ऐसे, चाहे वो खातून हो या चाहे वो मर्द हो, फौरन कंधे, तो उन्होंने उनके फौरन कंधे पे हाथ रखा और उनकी आंखों में लगा। हिज रिस्पॉन्स वाज जस्ट लाइक दिस, वी गोना बॉम्ब यू। अब वो बेचारा हैरान परेशान कि भाई मैं अमरीकी या बच्चा था, आया था, तो मुझे क्यों बॉम्ब करेगा। तो ही वाज सो हार्श इवन इन अ प्राइवेट फंक्शन। तो ओबामा का और बाइडन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अगेन देखिए, आई एम नॉट trying to influence any voters here, please, for God's sake, don't think I'm asking you to consider this as a vote changer, no. लेकिन पाकिस्तान के और उस रीजन के हवाले से इंडिया को ज़्यादा स्पेस मिलेगी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया को अफगानिस्तान में ज़्यादा एक रोल बढ़ाया जाएगा वहाँ पर, और इंडिया इस वक्त जो बैक फुट पर पहुँचा है ट्रम्प की वजह से, वो चीज़ें चेंज होंगी। अगर अच्छा, लेकिन फैज, ये जो आपने जो वाकया सुनाया, ये थोड़ा सा अचंभे की बात ये है कि नॉर्मली जो उम्मीदवार होते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, दिल में हो सकता है वो ये कहना भी चाह रहे हो, लेकिन उस तरह ओपनली कहते नहीं कि उस तरह हाथ रख के बॉम्ब यू मीनिंग यू के बाद, तो बिल्कुल या तो ये कहें जी बॉम्ब पाकिस्तान, एक बंदा आपसे आके मिला, आपने कहा जी बॉम्ब यू। नॉर्मली ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड पॉलिटिशियन का जनरली नहीं होता। दूसरी बात ये कि एक और भी बात है कि बाइडन साहब के जमाने में एक तो वाकया कोट करना जरूरी है कि
जब वो अफगानिस्तान में थे, यानी एज ए वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का टूर पे गए थे, तो उस जमाने में करजाई साहब ने एक पूरी की पूरी शिकायत की जो लिस्ट है वो थमाई थी इनको कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, बाइडेन साहब आप लोग ये कीजिए, यानी कि उसका मकसद ये है पाकिस्तान को तहस कर दीजिए। उसको जो बाइडेन साहब ने, यानी कि वो उस जमाने की बात है जिसको ओबामा साहब ने बड़ा हाफ स्टैंड लिया होता पाकिस्तान के खिलाफ, जो बाइडेन साहब ने उसको इस तरह से काउंटर किया कि पाकिस्तान हमारा एलाय है, पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, हमें पाकिस्तान की जरूरत है, और जो बातें तुमने कर रहे हो उसकी दूसरा उनका भी अलग काउंटर है, तो उन्होंने उसकी बातों को सीरियस भी लिया था। तो ये भी एक जो बाइडेन साहब के बारे में कहा जाता है कि जी उस भी विद इन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन साहब पाकिस्तान हार्श नहीं था एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ओबामा। नहीं फ्रांस, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अबाउट द अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन, पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर, अब उसमें ये अगर बाइडेन आते हैं तो वो उस अमेरिकन इंटरेस्ट को जरूर गार्ड करेंगे, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल जो एक डेमोक्रेटिक जो एक आइडियोलॉजी है वो दैट वुड बी एट प्ले एज वेल। उस डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान को तो थोड़ा सा और यही वजह थी हिस्टोरिकली पाकिस्तानीज अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को वोट्स देते हुए आए, इसकी वजह ये थी कि डेमोक्रेट्स they were more aligned with the Indian thinking for that region। तो ये एक बहरहाल एक पहलू है, लेकिन I totally agree with you कि वो बाइडेन ने हो सकता है कि उनके कारजाई से जब बात की हो तो एज एन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ही हैड टू, लेकिन इनका प्राइवेट में इनका जो एक जो इनकी सोच है पाकिस्तान के बारे में और वहाँ की जो इश्यूज के बारे में, तो वो एक थोड़ा सा एक आपको लेकिन एक और भी चीज़ है ना, उनकी जो सोच है कश्मीर के ऊपर बाइडेन साहब की जो एक पॉलिसी है जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है वो तो बिल्कुल एंटी इंडिया है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें अगेन वो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी इज एट डिस्प्ले कि आप ह्यूमन राइट्स की बात आप कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। तो जो कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो वो यकीनन वो तमाम जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि वो खुद अमेरिका में जिसके पर शोर मचा रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसके अगेंस्ट है। तो वो बिल्कुल लग्गा खाता है डेमोक्रेटिक। और उसमें अब देखना ये है कि जब व्हेन द रबर मीट्स द रोड सो टू स्पीक, जब अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है, क्या वो जैसे कि यहाँ पर अक्सर प्रेसिडेंट सिवाय ट्रम्प के करते आए हैं कि जब वो बुश ने कहा था, सीनियर बुश ने कि रीड माई लिप्स अबाउट टैक्सेस, लेकिन पहली ट्रम्प एक ही ट्रम्प थी उनकी, जैसे ही आया जो ना टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये क्या वो बात होगी या वाकईतन इट विल बी अ गेम चेंजर एक्चुअली। अगर आ जाते हैं और ये अपने उस वादे पर पूरा उतरते हैं तो हमारे रीजन के लिए तो इट विल बी अ ह्यूज गेम चेंजर। ठीक है मरियम, आपकी तरफ आता हूं, आपने दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुनी, आपके साथ एक तो एग्री करेंगी कि बाइडेन साहब का जो स्टैंड है या उनकी जो पर्सनल जो उनका स्टैंड है, एक तो पॉलिटिकल स्टैंड फिर पर्सनल स्टैंड के हवाले से क्या हाँ, I mean, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। बाइडेन ने ऑल्सो जो कैरी लूगर बिल थी वो पहले बाइडेन लूगर बिल थी, तो I think he also supports maybe democracy in Pakistan more। अभी जो ये PDM का मूवमेंट चल रहा है तो उसने promises in the past की है कि हम आपकी मिलिट्री straight आपकी मिलिट्री को नहीं जाएंगे, we want to strengthen the civilian government and the middle class in Pakistan। तो पहले उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। Trump I think will not care so much for democracy in Pakistan क्योंकि वो खुद democratic freedom of speech इस तरह की चीजें अमेरिका में भी इतना वो नहीं यहाँ पे strengthen करते हैं। तो and also the first tweet of 2018 जो ट्रम्प ने की थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि ये deceitful लोग हैं, they're hypocrites। तो ट्रम्प कुछ कहते हैं और फिर कुछ और करते हैं। तो also he is very good friends with मोदी। जो हाउडी मोदी का इवेंट पूरा हुआ था उसमें हम लोगों ने खुद देखा था कि वो exactly same जो मोदी वर्ड्स यूज करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म and then the Muslim ban and against पाकिस्तान, उन्होंने भी सेम वर्ड्स यूज किए हैं और वो they're very close friends and also उनकी पर्सनालिटीज भी बहुत मैच करती हैं। लेकिन उनकी रिलेशनशिप आई थिंक इमरान खान के साथ कुछ अच्छी हैं, तो वो शायद जब इमरान खान के साथ वो बैठते हैं तो उनकी एक रिलेशनशिप लगती है कि शायद बिकॉज दे आर आल्सो सिमिलर इन पर्सनालिटी, इमरान खान, ट्रम्प,
मोदी, आई मीन इमरान खान ने खुद कहा था कि वो खुद मोदी को चूज करेंगे, कि वो खुद चाह रहे कि मोदी आएंगे तो कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व होगा। वो भी हम लोगों ने देखा कितना वो गलत साबित हुआ। तो आई थिंक ट्रम्प कहते कुछ है लेकिन वो करते वही हैं जो वो उनके लिए फायदेमंद होता है। तो वो यही देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप इंडिया से स्ट्रेंथन होना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए फायदेमंद है। वो पाकिस्तान को प्रेशर करते रहेंगे। लेकिन बाइडेन आई थिंक अंडरस्टैंड्स द कम्प्लेक्सिटीज मोर, तो वो शायद डेमोक्रेसी को ज़्यादा फेवर करेंगे। वो शायद मिडिल क्लास को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे वो कैरी लूगर बिल वाज $7.5 billion फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान ओवर 5 years। तो वो रिलेशनशिप खराब हुई थी, लेकिन वो रिलेशनशिप मिलिट्री के साथ खराब हुई थी। और ट्रम्प ने भी मिलिट्री को यहाँ पे पनिशमेंट दी है कि उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी और पैसे थे, उन्होंने रोका है कि तुम पहले टेररिज्म को ठीक करो, फिर हम तुमको इस तरह के पैसे देंगे। ठीक है मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट्स कंक्लूजन की तरफ। आप किस तरह से देखते हैं दोनों सिनेरियो में पोस्ट ट्रम्प पॉलिसीज, पोस्ट इलेक्शन पॉलिसीज, डिपेंडिंग कि ट्रम्प साहब आ जाएं और या बाइडेन साहब आए, पाकिस्तान और साउथ एशिया में क्या इम्पैक्ट हो? देखिए फराज, ये देखने के लिए कि बाद में क्या होगा, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट साउथ एशिया में क्या है। उसका जो प्रीडोमिनेंटली 3 स्टेजेस हैं उसके इंटरेस्ट के। एक तो आसियन कंट्री के साथ ट्रेड है, 10 कंट्रीज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के, फिर चाइना से उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है, और जो साउथ चाइना सी का है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मे बी द अमंग द इम्पॉर्टेंट वन इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया का जो एक एफ-पैक या समथिंग लाइक दैट जो कहा जाता था, इसमें इंडिया भी शामिल करने। अब देखिए कि इन तीनों चीज़ों में एशियन में तो ट्रम्प साहब ने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की। उन्होंने तो अपना अभी तक एनवॉय तक नहीं अपना लगा के दिया, नॉमिनेट करके दिया। तो जाहिर है वहाँ के ऊपर जो जो बाइडेन साहब हैं, वहाँ के ऊपर थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, थोड़ी सी बातें आपको वहाँ पे सुनाई देती जाएंगी। चाइना में अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा परसेप्शन डेवलप हो रहा है कंट्री में, बल्कि सारी दुनिया में, कि जो कुछ हो रहा है वो चाइना और अमेरिका में वो ट्रम्प साहब की वजह से हो रहा है। हालांकि ये बात इंटायरली नॉट ट्रू। आप देख लीजिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को जो ब्लॉकेट करने का जो एक एक्सरसाइज हुई थी, वो भी हुई थी ओबामा साहब के ज़माने में। फिर जो साउथ चाइना सी का जो हॉट वॉर का, जो क्लोज टू हॉट वॉर का जो इंसिडेंट था विद USS कॉल्पिन का, वो भी हुआ था 2013 में, उस वक्त ओबामा साहब थे। तो ये कहना कि ये अभी शुरू हुआ है, ये बात सच नहीं है, ये पहले से थी, उसमें इंक्रीज हो सकती हैं चीज़ें। अब आइए अफगानिस्तान पाकिस्तान पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप देखिए कि जो ट्रम्प साहब हैं, और मैं आई एम लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स फैज साहब, कि जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, उनका ये है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर होते हैं। तो जहां एक दफा पुल आउट हुआ, दे विल जस्ट लीव। और वो जो है शायद पाकिस्तान के लिए एक तरह से अच्छा हो और एक तरह से बुरा हो। अच्छा इस लिहाज से हो कि वहाँ पर से अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से ये होगा कि कोई पाकिस्तान से डू मोर नहीं कहेगा। लेकिन जो ओबामा साहब हैं, आई मीन जो बाइडेन साहब हैं, वो चाहेंगे कि जो पीस डिविडेंड है उसको जो है मेंटेन रखा जाए और उसके लिए कुछ प्रेजेंस रहे। और वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस हिसाब से, जैसा मरियम ने फरमाया, कि वहाँ के ऊपर थोड़ा सा एक अमेरिकन फोर्सेस रहेंगी जो कि वॉच करती रहेंगी। लेकिन बुरी चीज़ उसमें ये है कि आप देखिए जो ये पीस एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे हुए हैं कुछ फैक्शंस के साथ। वहाँ पे तालिबान के इतने सारे फैक्शंस हैं जो कि शायद इस पीस प्रोसेस में शामिल नहीं है उसके, हाँ, उसमें उस पर ऑन बोर्ड नहीं है। और उन्होंने अगर अपने हमले जारी रखे और उसकी वजह से अमेरिकन के लिए लॉस हुआ, लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ वहाँ के ऊपर, तो बाइडेन साहब जो हैं वो ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को उस हिसाब से। वैसे भी बाइडेन साहब जो हैं
आई एग्री विद फैज इस बात पे कि वो थोड़ा टफ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो जो है काफ़ी डेमोक्रेटिक हैं और जिस तरह से चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं वो चीज़ें जो हैं वो उनको कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो चीज़ें, ये आपने जो वाक़या सुनाया वो सच है, वो जो है स्टीवन कोल ने अपनी किताब में लिखा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारे अलाई हैं, ही स्टूड अप विद एंगर and he say, you know, Pakistan is 50 times more than important for US than you people are. तो उन्होंने बड़ी सख्त बात का जवाब दिया उसमें। लेकिन ये है कि जो ये पीडीएम की जो इश्यूज हैं आजकल, जिस तरह से एक तरह से एक नैरेटिव जनरेट हो रहा है, वो शायद पाकिस्तान को हेल्प करे बाइडेन साहब को करीब लाने में। बड़ा अहम सवाल मिसबा आपसे स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल कंक्लूजन, और ये सवाल पूछना जरूरी है सर, ईरान डील का क्या बनेगा? अगर बाइडेन साहब आ जाते हैं तो फिर कहाँ जाएगी ईरान डील, क्योंकि उसका भी हमारे खत्ते में असर पड़ता है। देखिए फराज, एक दफा डील्स टूट जाए ना तो उसको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा चीज़ें बहुत कुछ होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है यूएस इस्टेब्लिशमेंट के मूड पर। अगर यूएस इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वहाँ के ऊपर कोई हॉट वॉर जनरेट की जाए तो बाइडेन साहब के को वो जनरेट करने के मोर चांसेस हैं देन ट्रम्प साहब के, क्योंकि ट्रम्प साहब जो कुछ भी हो वो करते वो है जो वो समझते हैं सही है। और मैं ये कोई तारीफ में या उनकी बुराई में नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग इट कि ही डज थिंग्स व्हेनेवर ही थिंक्स इट इज राइट। कि उन्होंने देखिए ट्वीट किया जो कि पाकिस्तान को डिसीटफुल और वो सब, और वही ट्रम्प साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बड़ी अच्छी तरह से बातचीत भी की। लेकिन जब इमरान खान साहब आए तो कोई किसी एनवॉय को नहीं भेजा गया, कुछ नहीं, वो ट्रेन पे बैठकर वाशिंगटन डीसी गए लाइक आम लोगों की तरह, कोई केयर नहीं की। लेकिन जब वो व्हाइट हाउस तशरीफ लाए इमरान खान साहब तो उनकी एक तरह इज्जत भी हुई, और उसी के साथ साथ उसी वक्त जो कि हमारे जनरल बाजवा साहब थे वो जब पेंटागन गए तो उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई, उनको सलूट भी हुए और गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ। फराज एक जुमला इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हमारे मिसबा साहब की। तो लग ये रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इधर भी है, एस्टेब्लिशमेंट उधर भी है, और सारा मामला अंपायर्स का ही चल रहा है। हाँ सही बात है। लेकिन देखिए फैज, एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ काम करती है वो दूसरी तरह करती है जैसे हमारे यहाँ होता है, इन ए लाइटर वे। ठीक है मरियम, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू एंड देन आई एम गोइंग टू एंड द शो। Last comments, I also just wanted to say Trump ने ये भी retweet किया था recently कि Osama bin Laden का कोई बॉडी डबल था, द कंस्पिरेसी theory जो कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया कि यू नो पाकिस्तान में शायद वो नहीं था, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि अब यू नो क्या होगा इलेक्शन में एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स, लेकिन I think majority of the policies will remain the same between the two, लेकिन उनका जो attitude होगा उस पे काफी you know differences होंगे। मैं बिल्कुल शो खत्म कर, आखिरी सवाल मिसबा साहब आपकी तरफ, ये किसी दोस्त ने हमारे भेजा है और मैं क्योंकि ऑडियंस के जो सवाल है लेने भी जरूरी है। वो कहा कि ये पाकिस्तान एक भी फंसा हुआ है ना, एक चाइना और अमेरिका की एक वॉर सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल रिफ्ट चल रही हैं, टैरिफ लगे हुए हैं, मामला खराब है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान? देखिए चाइना का जो साइड है, जो कि ये साउथ चाइना सी का जो एक इशू है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई, देखिए पाकिस्तान पे उसका बस इतना ही इम्पैक्ट होगा जितना अभी हो रहा है। वहाँ के ऊपर कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ें बहुत बड़ी उसमें बदल जाएंगी या कुछ हो जाएगा। ट्रेड वॉर अब शुरू हो चुकी है, वो वैसे ही रहेगी। शायद बाइडेन साहब थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की कोशिश करें जिसका पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तमाम हजरात का, मरियम सभी, फैज रहमान साहब, मिसबा आजम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हजरात अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इलेक्शन की धमाधम मची रहेगी, मेरे ख्याल से अगला हफ्ता भी इलेक्शन एक दिन पहले है, यानी कि हमारा होगा। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।